I started the recording and we are discussing the question number 18E in which your sigma is 0, 1 and the problem is that all the strings having number of zeros multiple of 3. So we have to accept in the language which which accepts all the strings in which number of zeros is multiple of 3. So as I've told you that this we can also rewrite something like this, that L is collection of all strings W such that n0w mod 3 is equal to 0. तो हमने क्या किया, प्रॉब्लम को थोड़ा सा रीफॉर्मेट कर लिया. तो अगर नंबर ऑफ जीरोज जो W में है उसको मैं मॉड 3 ले लूँ और अगर वो इक्वल टू 0 है तो वो क्या, इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोज इन W आर मल्टीपल ऑफ 3 बिकॉज व्हेन नंबर ऑफ zeros in W will be 0 then its mod 3 will be equal to 0. So it is a multiple of 3, 0 times multiple of 3. If the number of zeros in W are 3, then its mod 3 will be again equal to 0. So 3 is multiple, one time multiple of 3. Similarly 6, it is 2 time multiple of 3, and if we take 6 mod 3, this will also be equal to 0. 2 times it will go and remainder will be 0. So, and we have already seen that if we have the problems like in which we have to work on remainders, then always we know that how many mutually exclusive states will be there. Okay, so how many mutually exclusive states will be in this problem? Just tell me. How many mutually exclusive states will be there in this problem? Just tell me, class. Sir, 3. 3. Okay. So one corresponding to the remainder 0, another corresponding to the remainder 1, and the third corresponding to the remainder 2. ये 3 रिमाइंडर तो पॉसिबल है, 0, 1 या 2. उसके बाद फिर वापस कहाँ पे जाएगा, वापस 0 पे जाएगा. ओके, सो विच स्टेट विल बी द स्टार्ट स्टेट, जैसे हमने पिछली प्रॉब्लम्स में डिस्कस किया था. अवर this 0 remainder state will be the start state, because in the starting when we have not read anything from the string, our string is null string. Okay, so null string contains number of zeros equal to 0. Okay, so if 0 mod 3 is equal to 0, so it is the start state, and as per the problem this is the final state as well. As per the problem this is the final state as well. क्यों? क्योंकि हमें स्ट्रिंग्स में नंबर ऑफ जीरोस क्या चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि n0w mod 3 शुड बी इक्वल टू 0. तो 0 के कॉरस्पॉन्डिंग वाली जो भी स्टेट होगी दैट विल बी द फाइनल स्टेट, और स्टार्टिंग स्टेट हमने देख लिया ये होगी. अब बाकी हमें क्या करना है, केवल ट्रांजिशंस कंप्लीट करना है. तो आप स्टार्ट से स्टार्ट करिए. आप पहला जो है अपना लेटर इस रीड करेंगे इस स्टेट में, या तो वो एक 0 होगा या एक 1 होगा. अगर 1 होगा तो क्या करना है मुझे, आई विल स्टे हियर. क्यों? क्योंकि 1 से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आपके कितने भी 1 आ जाएं, आपके नंबर ऑफ जीरोस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. और मेरे प्रॉब्लम किस पे बेस्ड है, नंबर ऑफ जीरोस पे बेस्ड है. तो जब भी 0 आएंगे तब मेरी स्टेट में चेंज पॉसिबल है, वंस के आने पर मेरी स्टेट में चेंज पॉसिबल नहीं है. तो ऑन 1 आई विल स्टे हियर. जैसे ही 0 आएगा, तो अब ये मेरा पहला 0 है. ओके, पहला 0 तो 0 नंबर ऑफ जीरोस क्या था, पहले 0 थे, अब क्या हो गए, 1 हो गए. तो 1 mod 3 विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू 1. सो दैट्स व्हाई ऑन रिसीविंग ए 0 I will move to the state which is corresponding to the remainder 1. Okay, so I have made all the transitions of this first state, start state. Now come on this state which is having the remainder 1. So again if 1 comes, so I will stay here, क्योंकि number of ones से मेरे number of zeros पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मुझे किस पे देखना, number of zeros mod 3 equal to 0. Okay, जैसे ही 0 आएगा, अब मेरे पास number of zeros अभी तक क्या थे, 1 थे, तो अगला 0 आती नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे मेरे, 2 हो जाएंगे, और 2 mod 3 will be equal to 2. So on 0 I will move to 2. Similarly in this 2 state, in the state which is corresponding to the remainder 2, if I get a 1 I will remain there, because 1 are not useful to me. Okay, and then जैसे ही मेरे को 0 मिलेगा तो मेरे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, अभी तक यहाँ क्या थे, 2 थे, ये क्या है मेरा तीसरा 0, और तीसरा 0 आते 3 mod 3 equal to 0. So that's why I am moving to the state which is corresponding to the remainder 0. इसी तरह से जैसे मुझे आगे 1 मिलते रहेंगे कोई दिक्कत नहीं, जैसे मुझे अगला 0 मिलेगा, अगला 0 क्या होगा, इट विल बी द 4th 0. इफ आई टेक 4 mod 3
For mode 3 is equal to 1. So that's why I will be moving to the state 1. Similarly, then whenever I will get the next 0, it will be the fifth 0. So 5 mod 3 will be equal to 2. So that's why I am moving from 1 to 2. Then I will get the 6 0 suppose in this state. So 6 mod 3 will again be equal to 0. So on 6 0, I will move back to the this state which is corresponding to the remainder 0. So in this manner, I can complete this F. It is quite simple. So already we have done this whenever our problem is being given in this particular format. But if I say it is having multiple of something, then also it can be converted into this. Okay. I hope it is clear. I hope it is clear. Yes, sir. Okay. Then you are asking for the last one. Okay. So the set of all strings such that every block of सर 5. एच आई पार्ट भी बता दीजिए सर, एच और आई पार्ट भी बता दीजिए, एच और आई. ओके, एच पार्ट पे देख लेते हैं पहले. स्ट्रिंग्स आइदर स्टार्ट. ओके, लेट अस टेक द एच पार्ट. Just a minute. H part. H part. Strings either start with 0 1 or end with 0 1. So string either start with 0 1 or end with 0 1 and with 0 1. कल ये प्रॉब्लम शायद किसी ने मुझसे डिस्कस की थी एंड सक्सेसफुली हैज कंप्लीटेड. आई थिंक गरिमा ने कंप्लीट की थी. ओके. सो अब इस प्रॉब्लम में अगर हम देखें तो आइदर स्टार्ट विद 0 1 और एंड विद 0 1. अभी हम पहले पहली प्रॉब्लम को लेते हैं, स्टार्ट विद 0 1. सो ऑब्वियस सी बात है, दिखाई दे रहा है आपको सक्सेस पाथ से होगा. इज इट? सो लेट अस मेक ए सक्सेस पाथ. सो देयर विल बी ए स्टार्ट स्टेट. There will be a start state and success path says I must get a 0 and 1 as two starting letters. तो अगर मेरे शुरू के दो letters 0 1 है तो it is a success for me. Okay, it is a success for me. So just 1 minute. I have okay. So it is a success for me. Now this success is final or not? Yes, this success is final क्योंकि अगर मेरे शुरू के दो लेटर 0 और 1 हो गए तो मैं जिस स्टेट पे पहुंचा ये फाइनल स्टेट है और उसके बाद कुछ भी आए आगे मुझसे कोई ये सक्सेस नहीं छीन सकता क्योंकि मेरा वर्ड 0 1 से स्टार्ट हुआ है. ओके, सो द ट्रांजिशंस फॉर दिस स्टेट विल बी टू द सेल्फ लूप. ऑन 0 and 1 इट विल बी ए सेल्फ लूप. ओके, इज इट क्लियर? पहला पार्ट क्लियर है? Is it clear to everyone? Yes, okay. अब आते हैं दूसरी प्रॉब्लम पे. मान लीजिए 0 1 से स्टार्ट नहीं हुआ, किसी और से स्टार्ट हुआ. 0 1 से स्टार्ट होने के लिए मेरे सबसे पहली चीज क्या है? 0 से स्टार्ट होना. अगर 0 से स्टार्ट नहीं हुआ, सपोज 1 से स्टार्ट हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है मैं इस पाथ को कभी भी फॉलो नहीं कर सकता. जो सक्सेस पाथ मैंने बनाया था इस पाथ को कभी भी फॉलो नहीं कर सकता. इसलिए 1 पर मैं ना तो इस पाथ पे रुक सकता हूँ ना इस पाथ पे आगे बढ़ सकता हूँ. तो मुझे क्या करना है? मुझे इस पाथ से अवे जाना है. ओके, सो आई विल गो away from this path. So on 1 I will be moving away. So यानी कि 1 से स्टार्ट हुआ तो इसका मतलब 0 1 से स्टार्ट तो नहीं हुआ. अब चाहे 1 0 से हो या 1 1 से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इट इज नॉट द स्टार्टिंग विद 0 1. तो अब मैं अवे तो आ गया, लेकिन क्या सक्सेस का कोई चांस है? यस, स्टिल देयर इज अ चांस ऑफ द सक्सेस फ्रॉम द सेकंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, दैट इज एंड विद 0 1. ठीक है, 0 1 से स्टार्ट नहीं हुआ तो 0 1 से एंड तो हो सकता है. ओके, सो 0 1 से अब मान लीजिए मेरा स्ट्रिंग 1 से स्टार्ट हुआ, मुझे किससे अगर 0 1 से एंड हो जाए तो भी सक्सेस मिल सकती है. ओके, तो अब मैं देखता हूँ 0 1 अगर मेरे को मिल रहा है और वहां मेरा स्ट्रिंग एंड हो रहा है तो इट विल बी ए सक्सेस फॉर मी. सो अगेन दिस आई कैन मेक फ्रॉम द सक्सेस पाथ. आई विल मेक ए सक्सेस पाथ 0 and 1 and this will be a final state. अब इस फाइनल स्टेट में जो क्वेश्चन है वो ये है कि 0 1 से एंड हो तो ये सक्सेस फाइनल है. अगर 0 1 से एंड नहीं हुआ उसके बाद कुछ और आ गया तो ये सक्सेस फाइनल नहीं. देन वी हैव टू लुक एट कि हम क्या कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, वेदर आगे भी सक्सेस का कोई चांस है या नहीं है, दैट वी हैव टू डिसाइड. ओके, सो दिस सक्सेस पाथ वी हैव मेड.
अब देखिए इस स्टेट के दोनों ट्रांजिशन कंप्लीट है, 0 पर मैं इस सक्सेस पाथ को फॉलो करूंगा, 1 पर इधर आ जाऊंगा। ओके, अब मैं सबसे पहले ऊपर वाली स्टेट देखता हूँ कि सपोज मैं 0 1 वाला सक्सेस पाथ फॉलो कर रहा था, तो पहला लेटर मेरे को 0 मिला, 0 1 वाले सक्सेस पाथ पे आया कि 0 से स्टार्ट हुआ, अगला 1 मिल जाए तो मेरी सक्सेस है, और वो सक्सेस क्या है, फाइनल है। लेकिन अगर अगला 1 नहीं मिला इस स्टेज पे, पहला 0 मिलने के बाद आपको अगला भी 0 मिल गया, अगर आपको क्या मिल गया, अगला भी 0 मिल गया, तो क्या हुआ, तो 0 0 से स्टार्ट हुआ, इज इट, यानी कि 0 1 से तो स्टार्ट नहीं हुआ, अब 0 0 से स्टार्ट हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको सक्सेस इस पाथ पर तो नहीं मिल सकती, ये पाथ तो छोड़ना पड़ेगा, ये पहला वाला जो पाथ है सक्सेस का, ये पाथ आपको छोड़ना पड़ेगा। अब आपको क्या है कि लेकिन दूसरे पाथ से सक्सेस मिल सकती है कि 0 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 1 से स्टार्ट नहीं हुआ, बट 0 1 से एंड तो हो सकता है। ओके, सो आई विल ट्राई टू स्विच ओवर द पाथ विच इज कॉरस्पॉन्डिंग टू द एंडिंग विद 0 1। अब यहाँ पे मैं इस पाथ पर स्विच करूंगा, लेकिन इस पाथ पे कहाँ स्विच करूंगा, आप देखिए मैंने ऑलरेडी एक 0 पढ़ रखा है, अगला लेटर 0 मेरे को मिला, ठीक है, तो 0 0 तो मेरे लिए यूजलेस है, बट जो लास्ट 0 मैंने पढ़ा है, दिस कैन बी यूजफुल टू मी। इसके बाद मेरे को अगर अगला 1 मिल जाए तो मेरी सक्सेस है। सपोज फॉर एग्जाम्पल माई स्ट्रिंग इज 0 0 1, सपोज दिस इज माई स्ट्रिंग। ऑलवेज आई विल एडवाइज यू कि जब भी आप इस तरह के प्रॉब्लम्स बनाए जिसमें एनालाइज करना है, तो अगर उसके शुरू के स्टार्टिंग के कुछ वर्ड्स आप लिस्ट आउट करके रख लेते हैं, तो आपको अपने ट्रांजिशंस डिसाइड करने में आसानी रहती है। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया 0 0 1, तो 0 से यहाँ आया, अगले 0, चूंकि 0 1 से एंड हो रहा है, तो सक्सेस तो होनी चाहिए, यानी कि 0 1 लास्ट वाला ये 1 आने पर मैं कहाँ होना चाहिए, इस फाइनल स्टेट पे होना चाहिए। अब इस फाइनल स्टेट पे कहाँ से जा सकता हूँ, इस स्टेट से जा सकता हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है, ये 0 मुझे कहाँ ले जाएगा, 0 मुझे इस स्टेट पर ले जाएगा। वैसे भी आप देखिए, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें, इसमें इस स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, चूंकि मुझे 0 1 से एंडिंग देखनी है। सो अगर मेरे पास एक 0 आया है, उससे पहले कुछ भी आया, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट रिसेंटली मेरे पास अगर एक 0 आया है और मैं एंडिंग विद 0 1 देख रहा हूं, तो मुझे इस स्टेट पर होना चाहिए, इज इट। सो दैट्स व्हाई आई विल मूव टू दिस स्टेट which is having the responsibility of holding a particular only a single 0, and the responsibility of this state is holding 0 1, is it। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, तो इसका 0 पर कंप्लीट हो गया, 1 पे कंप्लीट हो गया। अब देखिए ऊपर वाले सक्सेस पाथ की सारी स्टेट्स मेरी कंप्लीट हैं। अब मैं आता हूँ नीचे वाले सक्सेस पाथ पे, 1 लेकर के यहाँ आया था, इज इट। तो अब 0 1 से एंडिंग अगर हो तो सक्सेस है। अब मुझे अगर 0 मिला तो मैं सक्सेस पाथ पे आगे बढ़ जाऊंगा कि शायद अगला 1 मिल रहा हो और मुझे मेरा यहीं पे स्ट्रिंग एंड हो जाए तो सक्सेस हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे 0 नहीं मिला इस जगह, अगर मुझे इस जगह पर 0 नहीं मिला, 1 मिला, तो क्या करेंगे। 1 मिला तो क्या इस पाथ पे आगे बढ़ सकते हैं, ऑब्वियसली बात है इस पाथ पे आगे नहीं बढ़ सकते। बट क्या इस पाथ से अवे जाएंगे ना, इस पाथ से अवे भी जाएंगे, क्योंकि इस 1 के बाद 0 1 मिल गया तो भी तो सक्सेस हो जाएगी। सो मीन्स व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू स्टे ओवर दिस पाथ। सो ऑन 1 आई विल बी मेकिंग ए सेल्फ लूप, आई विल स्टे हियर। जब तक मेरे को 1 मिलता रहेगा, इट डजेंट मैटर, मैं हमेशा वेट करूंगा कि शायद 0 1 मिल जाए। इसके बाद अगर 0 और 1 मिल जाए तो मेरा सक्सेस हो सकता है, इज इट। सो जब तक 1 मिलता रहेगा आई विल स्टे हियर, जैसे ही 0 मिलेगा आई विल मूव ओवर दी सक्सेस पाथ एंड आई विल रीच हियर। तो अभी मैं यहाँ पहुंच गया, इस स्टेट पे पहुंचने का मतलब क्या है कि मुझे एक 0 मिला, यानी कि यहाँ स्टेट पे आने का मतलब क्या है कि एक तो आपकी स्टार्टिंग 0 1 से नहीं हुई है, चाहे वो 0 0 से स्टार्टिंग हुई हो और तब आप यहाँ आए हो, या 1 0 1 1 या किसी भी से भी स्टार्टिंग हुई हो, तब आप जो है इस जगह पर मौजूद है। तो अब आपको 0 1 से क्या चाहिए, एंडिंग चाहिए। तो एक 0 तो आपको मिल चुका है, एक 1 मिल जाए तो आपका सक्सेस है। तो अगर 1 मिला तो सक्सेस है, लेकिन अगर फर्दर 0 मिला तो, अगर फर्दर 0 मिला तो क्या करेंगे, स्टिल आई विल बी रीडिंग लास्ट लेटर एज 0, तो आई विल रिमेन हियर, क्योंकि यहाँ से 0 रीड करके यहाँ है, यहाँ से 0 रीड करके, यानी लास्ट लेटर रेड क्या है, 0। अगर मुझे अगला 0 मिलता है तो भी लास्ट लेटर रेड मेरा क्या है, 0 ही होगा। इसके बाद बस एक 1 मिल जाए तो मेरी सक्सेस है, इज इट। तो दैट्स वाई ऑन 0 आई विल स्टे हियर। जैसे ही मेरे को 1 मिला, वैसे ही मैं जो है यहाँ सक्सेस पर पहुंच गया। अब सक्सेस पे तो पहुंच गया, लेकिन ये सक्सेस फाइनल तभी है जब इस 1 पे एंडिंग हो। लेकिन अगर इस 1 पे एंडिंग नहीं हो रही, देन आई हैव टू लुक कि मैं कहाँ जा सकता हूँ। अब इस स्टेट पर पहुंचने के बाद आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो आपका स्ट्रिंग फिनिश हो जाए तो आप फाइनल स्टेट में एंड करेंगे, वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगा, या फिर अगर 0 हो सकता, इसके बाद क्या आ सकता है, या तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है। अगर 0 आया, अगर 0 आया तो वापस सक्सेस के लिए आपको क्या, आप सक्सेस तो नहीं है क्योंकि 0 1 से एंड होना था। अब ये अगर 0 हो गया तो लास्ट 2 लेटर्स क्या हो जाएंगे, 1 0। तो 0 से एंड तो यहाँ पर नहीं हो सकता, यहाँ से मूव
करना पड़ेगा, यहाँ से अवे जाना पड़ेगा, बट कहाँ जाए? 0 मिलने के बाद सक्सेस के लिए क्या चाहिए? एक 1 चाहिए। 1 लेकर के वापस यहाँ लौट आप किस स्टेट से सकते हैं? इस वाली स्टेट से सकते हैं जो जस्टिस से पहले वाली स्टेट है। सो ऑन 0 यू विल बी मूविंग टू दिस पर्टिकुलर स्टेट, जहां से एक 1 लेकर के आप वापस सक्सेस पे आ सके, क्योंकि एक 1 लेकर के आप वापस यहाँ आए तो अगेन यू विल बी एंडिंग विद 0 1। ओके, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि आपको एक 1 मिल जाए। ठीक है, अगर आपको 1 मिला तो आप देखिए इससे पहला 1 था, ये भी 1 है। 1 1 मेरे लिए यूजलेस है, सिंगल 1 भी मेरे लिए यूजलेस है। मुझे सक्सेस के लिए क्या चाहिए? 0 1 पूरा चाहिए। तो 0 1 लेकर के मैं वापस यहाँ आ सकूं, ऐसी कौन सी स्टेट है? ऑब्वियसली बात है, ये वाली स्टेट जो इसकी प्रीसीडिंग स्टेट से प्रीसीडिंग स्टेट है, ये वाली स्टेट है, ये पर्टिकुलर स्टेट है जहां से आप 0 1 लेकर के इस वापस सक्सेस पर लौट सकते हैं। सो ऑन 1 यू विल बी मूविंग टू दिस पर्टिकुलर स्टेट, जहां से एक 0 और एक 1 लेकर के आप वापस यहां लौट सकते हैं। सो ऑलवेज यू आर इंश्योरिंग कि व्हेनेवर यू रीच टू दिस स्टेट you have read last 2 letters as 0 1. If your string ends there, it will be successful. Otherwise it will end in some other state, either in this state or in this state. Okay, so this is all I wanted to discuss for this particular problem. I hope it is clear. Yes, sir. Yes. Okay, now we come to the third one, that is the I. I भी चलिए यहीं पे कर लेते हैं। I क्या है? I part. I part में क्या है? All strings of length at most 5. All strings of length at most 5, यानी 5 लेंथ तक के सारे वर्ड एक्सेप्ट होंगे, उसके बाद के सारे रिजेक्ट होंगे। इसे जिन लोगों ने कर लिया उनमें से कोई बता सकता है कैसे करेंगे? जस्ट एक्सप्लेन हाउ वी कैन डू इट। सर 5 स्टेट बनाएंगे जो 0 1 2 3 4 तक रिप्रेजेंट करेगा, 5 तक, और एक 6 स्टेट बनाएंगे जो बाहर के भाग में, मतलब जो एक्सेप्ट नहीं होंगे। Yes, so again it is the success path. If you look at, again it is the success path. मैं देखता हूँ कि मेरी सक्सेस क्या है। सबसे पहले all strings of length at most 5, यानी 0 लेंथ वाले सारे स्ट्रिंग एक्सेप्ट होंगे। ठीक है, 1 लेंथ वाले सारे स्ट्रिंग एक्सेप्ट होंगे, 2 लेंथ वाले सारे स्ट्रिंग एक्सेप्ट होंगे, 3 लेंथ वाले सारे एक्सेप्ट होंगे, 4 लेंथ वाले सारे एक्सेप्ट होंगे और 5 लेंथ वाले सारे एक्सेप्ट होंगे। तो ये सब तो वो हो गए जो क्या होंगे? एक्सेप्ट होंगे। और 6th 7th एंड सो ऑन, ये सारे के सारे क्या हो गए? इस लेंथ के सारे स्ट्रिंग क्या होंगे? रिजेक्ट होंगे। तो सबसे पहले 0 लेंथ का स्ट्रिंग, कितने स्ट्रिंग्स हैं? एक ही स्ट्रिंग है, नल, उसको एक्सेप्ट कराना तो क्या करना पड़ेगा? देयर विल बी, मैं नीचे की तरफ बना देता हूं, देयर विल बी ए स्टार्ट स्टेट विच शुड बी द फाइनल स्टेट एज वेल, इज इट? सो 0 लेंथ के सारे स्ट्रिंग एक्सेप्ट होंगे, इज इट? अब 1 लेंथ के मुझे सारे स्ट्रिंग बनाने हैं, तो 1 लेंथ यानी 0 या 1, या तो 0 आएगा या 1 आएगा। ओके, 0 आएगा या 1 आएगा। तो अब लेकिन मेरे को काउंट करना है कि मेरा 1 लेंथ हो गई। ओके, so that's why I will change the state. So 0, 1। तो अब 0 आया तो भी यहाँ पहुंचूंगा, 1 आया तो भी यहाँ पहुंचूंगा, यानी कि यहाँ 0 लेंथ के सारे स्ट्रिंग, यहाँ 1 लेंथ के सारे स्ट्रिंग पहुंचेंगे। अब 1 लेंथ के सारे स्ट्रिंग क्या है? आपके एक्सेप्टेड है, तो दिस शुड बी ए फाइनल स्टेट, इज इट? सिमिलर कॉन्सेप्ट को आप कंटिन्यू करते चले जाइए। अब 2 लेंथ के सारे स्ट्रिंग देखने, देखिए 1 लेंथ के सारे स्ट्रिंग यहाँ तक पहुंचेंगे, तो 2 लेंथ के सारे स्ट्रिंग यानी कि अगली स्टेट आप चेंज करेंगे, अगेन 0 या 1, सो यू विल रीच टू दिस स्टेट। तो इस स्टेट पे जब भी आप पहुंचेंगे तो 2 लेंथ के सारे स्ट्रिंग आप को यहीं पहुंचाएंगे। देखिए सपोज आपका 0 0 है तो 0 0, तब भी आप यहाँ पहुंचेंगे। 0 1 है तो 0 देन 1, तब भी यहाँ पहुंचेंगे। 1 0, तब भी यहाँ पहुंचेंगे। 1 1, तब भी यहाँ पहुंचेंगे। तो 2 लेंथ के सारे स्ट्रिंग आपको कहाँ पहुंचाएंगे? यहाँ पहुंचाएंगे। और 2 लेंथ के सारे स्ट्रिंग क्या है? एक्सेप्टेड। सो दिस शुड बी ए फाइनल स्टेट। नाउ कंटिन्यू दिस इन द सेम मैनर। नाउ 3 लेंथ के सारे स्ट्रिंग सक्सेसफुल, 4 लेंथ के सारे स्ट्रिंग सक्सेसफुल, 5 लेंथ के ऊपर बना देता हूं, चलिए 5 लेंथ के सारे स्ट्रिंग
सक्सेसफुल। उसके बाद 5 से ऊपर लेंथ के जितने भी स्ट्रिंग है वो अनसक्सेसफुल है। तो इसके बाद ये छठी लेंथ, यानी कि लेंथ अगर आपकी 6 हो गई, सो इट शुड नॉट बी अ फाइनल स्टेट। उसके बाद 7, 8, 9, 10 सबके लिए क्या है, नॉन फाइनल स्टेट ही है। तो आप चाहें तो 7 के लिए अलग से बना लें, 8 के लिए अलग से बना लें, बट अगर आप इस तरह से करेंगे तो यू हैव टू कंटिन्यू अप टू इन्फिनिटी। तो आप क्या कर सकते हैं नेक्स्ट, यानी कि 7वां हो, 8वां हो, 9वां हो या 10वां हो, 11वां हो एंड सो ऑन, सबकी डेस्टिनी सेम है। So that's why there will be a self loop, so it will be a non-final state. So in this manner you can complete this particular problem. I hope it is clear. Yes sir. Okay, concept is clear. थोड़ा थोड़ा है प्रैक्टिस, अगर आप जैसे जैसे इसको अपने आप बनाना शुरू करेंगे ना, आपको आइडियाज अपने आप आने लगेंगे, बहुत सारी चीजें, और कुछ चीजें आपको प्रैक्टिस से आ जाएंगी। मैंने पिछली प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम इस तरह की बनाई है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स विल कम टू योर माइंड, सो दिस विल इंक्रीज और दिस विल डेवलप योर थिंकिंग प्रोसेस। Now come on the next one, that is the J, IJ. So 18th J, question number 18th J. This says set of all strings such that every block of 5 consecutive letters, every block of 5 consecutive letters contain at least 2 zeros, contain at least 2 zeros. This is a tricky problem. इसकी ट्रिक अगर आपको मालूम है तो आप आसानी से बना लेंगे। अगर इसकी ट्रिक नहीं मालूम है तो इसे एज ए न्यू प्रॉब्लम अटैक करना इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। इट रिक्वायर्स एन आउट ऑफ बाउंड थिंकिंग, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। ओके, तो किसी ना किसी ने एनालाइज करके इसको बनाया होगा, बट जो है इसको फर्स्ट अटेम्प्ट पे आसानी से करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी हम इसको इसका एक सिस्टमेटिक व्यू देखने की कोशिश करते हैं। एवरी ब्लॉक ऑफ 5 कंसेक्यूटिव लेटर्स कंटेन्स एटलीस्ट 2 zeros, सो इट इज टॉकिंग अबाउट ब्लॉक ऑफ 5 कंसेक्यूटिव लेटर्स, और उसके अंदर एक कंडीशन दी है कि कंटेन्स एटलीस्ट 2 zeros। उसके बाद ये कह रहा है एवरी, यानी कि हर ब्लॉक के लिए यही होना है। so मींस इट इज ए सर्कुलर रिपीटिव काइंड ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि अगर हम एक 5 कंसेक्यूटिव लेटर्स का ब्लॉक बना लें और उसमें ये इंश्योर कर लें कि कम से कम 2 zeros होंगे, उसके बाद हमें इसको केवल रिपीट करना है। हमें क्या करना है, इसको केवल रिपीट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 कंसेक्यूटिव लेटर्स का ब्लॉक बनाने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारे जो 5 लेटर्स अगर हम लें तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज होती हैं, बस 32 पॉसिबिलिटीज होती हैं। एक 0 0 0 0 सारे, उसके बाद पहला 1, तो ये सारे के सारे, एंड ऑल दीज 32 पॉसिबिलिटीज में हमें वो पॉसिबिलिटीज देखनी है जिनमें कम से कम 2 zeros आते हैं। इज इट? तो इसका एक ही तरीका है केवल कि हम सारे के सारे पाथ जो है बनाएं। सो दैट्स व्हाई वी विल बी मेकिंग ए ग्रिड of 5 consecutive letters for this. Okay, so let us start. मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, देखिए यहाँ से ये स्टार्ट स्टेट है मेरी। पहला मैंने कॉम्बिनेशन बनाया 0 0 0, 3 zeros हो चुके हैं, चौथा 0 और पांचवा 0। इज इट? अब सपोज मेरा स्ट्रिंग ये है 5 zeros। ओके, तो ये तो सक्सेसफुल होना चाहिए। क्यों सक्सेसफुल होना चाहिए? क्योंकि इसमें 2 से ज्यादा zeros आते हैं। तो मेरी कौन कौन सी स्टेट फाइनल स्टेट होंगी? देखिए, पहला 0 आया तो ये फाइनल स्टेट नहीं हो सकती। दूसरा 0 आया, यस इट विल बी द फाइनल स्टेट, क्योंकि 2 zeros हो चुके हैं। 2 या 2 से ज्यादा 0 चाहिए मेरे को। इज इट? नाउ 3 0 है तो भी फाइनल स्टेट, 4 0 है तो भी फाइनल स्टेट, और 5 0 है तो भी फाइनल स्टेट। पहला मेरा सेट बन गया। अब ये अकेला स्ट्रिंग तो है नहीं, इस तरह के 32 स्ट्रिंग होंगे। ठीक है, तो अब मैं अगला स्ट्रिंग बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सपोज जो है मैं अगला स्ट्रिंग बनाता हूँ, शुरू के 4 zeros हैं लेकिन पांचवा जो है वो 1 है। इज इट? सो इट विल बी ए फाइनल स्टेट और नॉट?
अब अगर मान लीजिए मैं इस स्टेट पे पहुंचता हूँ तो इसका मतलब क्या, 0 0 0 0 4 जीरोज एंड 5वां 1, यानी कि 4 zeros 1. सबसे पहले मेरा स्ट्रिंग क्या था, 0 0 0 0 5 zeros, then I have made 0 0 0 0 1. Okay, so this string will be successful or not? Yes, it will be successful. That's why it is also the final state, is it? इसी तरह से अब आप देखिए, मुझे जहां भी डिफरेंट पॉसिबिलिटी लेनी है, मुझे एक वे अलग चाहिए. मान लीजिए सपोज अब मैं चाहता हूं कि मेरा जो है स्ट्रिंग ट्रिपल, सपोज 3 zeros और 1 0, ठीक है, 3 zeros and 1 0. Okay, so I can make it something like this, 1 and then is 0, is it or not? देखिए 0 0 0 1 and 0, इज इट? मैं इसको इस तरह से बना सकता हूं. अब क्वेश्चन ये तो फाइनल स्टेट होगी. क्यों फाइनल स्टेट होगी? क्योंकि यहां तक पहुंचने वाले इसमें 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, 2 से ज्यादा जीरो फाइनल स्टेट होगी. क्या ये फाइनल स्टेट होगी? यस, इट विल ऑल्सो बी ए फाइनल स्टेट. क्यों? क्योंकि इस यहां तक पहुंचने से पहले आपके पास 3 जीरो आ चुके हैं, तो ये ब्लॉक तो सक्सेसफुल हो चुका. ओके, सो दैट्स व्हाई इट विल बी ए फाइनल स्टेट, इज इट? 1 2 3 3 जीरो आ गए, 1 1 आया, तो ये भी फाइनल स्टेट है. चौथा जीरो भी, इट विल बी ए फाइनल स्टेट. तो आप देखें इस तरह से मेरा ये कॉम्बिनेशन बनता चला जाएगा. तो इस तरह से आप करते चले जाएं. तो अब मैं इसको सीधे बना दे रहा हूं. देयर विल बी ए 1, देयर विल बी ए 0, there will be a 0, and there will be a 0, there will be a 1, there will be a 1. तो इससे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन गए. आप देखिए मेरा अगर स्ट्रिंग है 0 0 1 0 0, तो 0 0 1 0 0, तो इसी तरह सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन जाएंगे. आप सीधे शब्दों में समझिए, अगर आप हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो यू हैव टू टेक ए ट्रांजिशन ओवर 0. देखिए यहाँ सारे जीरोज लिए हैं मैंने, यहाँ सारे जीरोज लिए हैं, यहाँ मैंने क्या लिए हैं, सारे वर्टिकल पे क्या लिए हैं, 1. तो इसी तरह से मैं 1 और जीरोज लेता चला जाऊंगा. मुझे क्या करना है, ब्लॉक केवल 5 का रखना है. तो देखिए यहाँ मेरे पास 5 आए थे, तो यहाँ केवल 4 ही आएंगे, क्योंकि मैं एक एरो जो है मूव कर चुका हूँ वर्टिकल डायरेक्शन में. यहाँ सारे के सारे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थे, तो इसलिए 5 तक गया था. ठीक है, यहाँ एक वर्टिकल आ गया, तो एक कम हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक कम हो जाएगा. सिमिलरली अगर मैं एक 1 इस जगह पे ले लेता हूँ, 0 0 0, और ये सारे मेरे क्या है, 1 1 1. तो आप देखिए फर्दर मेरा एक जो है पोजीशन कम हो गई है. क्यों कम हो गई है? क्यों? क्योंकि 2 पोजीशन में वर्टिकल मूव कर चुका. तो आप देखिए जब भी मैं इस स्टेट पे पहुंचूंगा तो मेरा ब्लॉक 5 का कंप्लीट हो चुका होगा. या जब भी यहाँ पहुंचूंगा तो ब्लॉक 5 का कंप्लीट हो चुका होगा. जब भी यहाँ पहुंचूंगा ब्लॉक 5 का कंप्लीट हो चुका होगा. तो ये जो मेरे डायगोनल बन रहा है, इस डायगोनल की किसी भी स्टेट पे पहुंचूंगा तो 5 का ब्लॉक कंप्लीट हो चुका होगा. ओके, अब मैं फाइनल स्टेट लगातार देखता चलता हूँ. देखिए ये वाली स्टेट मेरी फाइनल स्टेट होगी. क्यों? क्योंकि आप देखिए 1 2 0 यहाँ तक, तो इस लाइन के अकॉर्डिंग जो भी स्टेट्स आएंगी, इस लाइन के अकॉर्डिंग जो भी स्टेट्स आएंगी, वो सारी स्टेट फाइनल स्टेट होंगी. So that's why I am marking this is a final state, this is a final state. क्यों? क्योंकि अगर आप यहां पहुंचे किसी भी तरह से, तो आपके स्ट्रिंग में कम से कम 2 जीरो, आपके उस पर्टिकुलर ब्लॉक में कम से कम 2 जीरो जरूर होंगे, चाहे वो किसी भी रास्ते से पहुंचे. आप चाहे देखिए 0 0 1 1 करके पहुंचे यहाँ, ठीक है, चाहे आप 0 1 0 1 करके पहुंचे, 2 जीरोज हैं, चाहे आप 1 1 0 0 करके पहुंचे, देखिए आपके पास 2 जीरोज, इज इट? तो यानी कि इस पर्टिकुलर लाइन पर जब भी आप होंगे किसी भी स्टेट पर, तो आपके 2 जीरोज आ चुके होंगे. जब भी इस लाइन पर कहीं होंगे तो 3 जीरोज आ चुके होंगे. जब भी इस लाइन पर कहीं होंगे तो 4 जीरोज आ चुके होंगे. और जब भी इस पर होंगे तो आपके पास 5 जीरोज आ चुके होंगे. तो हमें तो 2 से ज्यादा जीरो चाहिए. तो ये सारी स्टेट इधर वाली जो होंगी हमारी क्या होंगी, फाइनल स्टेट होंगी. मैं इसी तरह से इसको कंप्लीट कर रहा हूं. 1 1 4 1 आ चुके देखिए वर्टिकल में मेरे, और ये मेरा क्या होगा, 5 होगा, इज इट? इसी तरह से मैं इसको कंप्लीट करता हूं. 0 0, ये मेरा 1, ये मेरा 1, इज इट? और ये मेरी क्या होगी, फाइनल स्टेट होगी. इसके बाद यहां पर 0
1, ओके, एंड दिस विल बी द नॉन फाइनल स्टेट। आप देखिए ये मेरा जो है डायगोनल बन गया। आप अब इस डायगोनल की किसी भी स्टेट पे तो आप हमेशा 5 का ब्लॉक बनाए हुए। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? यानी कि आपके इस तरह से जो भी 32 स्ट्रिंग्स बनेंगे वो सारे स्ट्रिंग्स यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गए। इज इट? वो सारे स्ट्रिंग्स यहाँ रिप्रेजेंट हो गए। इज इट क्लियर और नॉट? अप टिल नाउ इट इज क्लियर और नॉट क्लास? यस सर, क्लियर। ओके, अब इसमें आगे के ट्रांजिशन देखते हैं। अब हम ये देखते हैं, हमने एक तरह से सक्सेस पाथ सारे बना लिए, कौन सी स्टेट्स फाइनल स्टेट्स होंगी वो सब डिसाइड कर लिया। अब देखते हैं कि ये डीएफए कंप्लीट है कि नहीं है। अब आप कहीं भी देखिए, यहाँ देखिए 0 पे भी है, 1 पर भी है, इसका ट्रांजिशन 0 पर भी है, 1 पर भी है। सो ये बीच के इंटरनल जितनी स्टेट्स हैं इन सबके 0 और 1 के ट्रांजिशन कंप्लीट है। केवल जो डायगोनल स्टेट्स हैं इनके 0 और 1 के ट्रांजिशन कंप्लीट नहीं है। तो इन ट्रांजिशंस को हम देख लेते हैं। सबसे पहले सपोज इधर से देखते हैं कि अगर मेरा जो है मैं इस जगह पर पहुंच गया, ठीक है, इस जगह पर पहुंचा 5 के ब्लॉक से, इस जगह पर पहुंचा, ठीक है, तो क्या मुझे अगला ब्लॉक देखने की जरूरत पड़ेगी? ना। क्यों? क्योंकि इस ब्लॉक में एक भी 0 नहीं है, तो ये मेरा रिजेक्शन हो गया। और एक भी ब्लॉक फिल करेगा तो आगे वाले ब्लॉक में अगर कंडीशन सेटिस्फाई भी हो रही हो तो भी मेरा स्ट्रिंग क्या होगा? रिजेक्ट होगा, क्योंकि इस एक पर्टिकुलर ब्लॉक में मेरा स्ट्रिंग फेल कर गया है। ये क्या करिए प्रॉब्लम? एवरी ब्लॉक ऑफ 5 कंसेक्यूटिव लेटर्स, एवरी ब्लॉक ऑफ 5 कंसेक्यूटिव लेटर्स कंटेन्स एटलीस्ट 2 zeros। यानी कोई भी एक ब्लॉक फिल करेगा तो आगे वाले ब्लॉक ऑटोमेटिकली जो है, मतलब उनको चेक करने की जरूरत नहीं, वो अगर सेटिस्फाई भी करते होंगे तब भी आपका स्ट्रिंग क्या होगा? रिजेक्ट ही होगा। ओके, सो यानी कि अगर मैं कहीं भी इस तरह से करते हुए इस पर्टिकुलर स्टेट पर पहुंचा तो इसका मतलब आगे कुछ भी आए मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा स्ट्रिंग रिजेक्ट होना ही होना है। सिमिलर इज द सिचुएशन हियर। अगर मैं यहां पे पहुंचा तो इसका मतलब क्या है? इस पर्टिकुलर ब्लॉक में मेरे पास सिंगल 0 आया, यानी 4 1 आए, चाहे मैं किसी भी तरह से पहुंचे, चाहे आप देखिए 1 1 1 1 1 0 इस तरह से पहुंचा, चाहे 1 0 1 1 1 करके पहुंचा, चाहे 1 1 0 1 1 करके पहुंचा, चाहे 1 1 1 0 1 करके पहुंचा। बट यहां तक मेरे पास इस 5 के ब्लॉक में क्या है? केवल एक 0 है। ओके, तो यानी कि ये मेरा रिजेक्ट हो रहा है, ये पर्टिकुलर ब्लॉक रिजेक्ट हो रहा है। तो आगे वाले भी सारे ब्लॉक कोई फायदा नहीं अगर वो सक्सेसफुल भी हो। सो ऑन 0 and 1 आई विल स्टे हियर, माई स्ट्रिंग इज गोइंग टू बी रिजेक्टेड। अब आते हैं ये सारे के सारे जो सक्सेसफुल हैं, यानी कि अगर मैं यहां पहुंच गया तो मेरा क्या हुआ? करंट ब्लॉक सक्सेसफुल हो गया। यहां पहुंचा तो इसका मतलब क्या हुआ? करंट ब्लॉक सक्सेसफुल हो गया। अब अगर मेरा करंट ब्लॉक सक्सेसफुल हो गया तो मुझे अगला ब्लॉक चेक करना है कि अगला ब्लॉक भी सक्सेसफुल है कि नहीं है। तो मैं इसे कब तक चेक करूंगा? जब तक कि मेरे सारे ब्लॉक सक्सेसफुल ना हो जाए। या तो मुझे कोई भी एक ब्लॉक ऐसा मिल जाए जो फेल कर रहा है तो मैं डिक्लेयर कर सकता हूं कि भाई आगे चाहे कुछ भी है मेरा स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मेरा ब्लॉक सक्सेसफुल हुआ तो अगला ब्लॉक भी सक्सेसफुल हुआ, उससे अगला भी सक्सेसफुल हुआ, और इसी तरह से मेरा स्ट्रिंग एंड हो गया और सारे ब्लॉक सक्सेसफुल होते गए तो मेरा स्ट्रिंग क्या होगा? सक्सेसफुल होगा। तो यानी कि अगर मैं यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, यहां पहुंचा या यहां पहुंचा तो मुझे क्या करना है? अगला ब्लॉक चेक करना है। अब अगला ब्लॉक चेक करने के लिए मुझे कहां पहुंचना पड़ेगा? इज इट? अब यानी कि अगला लेटर रीड करूंगा, अगला लेटर रीड करूंगा, या तो वो क्या होगा? 0 होगा या 1 होगा। सपोज इट इज ए 0, सपोज इट इज ए 0, तो अगले ब्लॉक में एक 0 रीड करने के बाद मुझे कहां होना चाहिए? देखिए मैं यहां से स्टार्ट करता, दिस इज माई स्टार्ट स्टेट, दिस इज माई स्टार्ट स्टेट। एक 0 रीड करने के बाद मैं इस स्टेट पे होता। तो यानी कि जब भी मैं अगले ब्लॉक के लिए इस ब्लॉक को फाइनल करने के बाद एक लेटर रीड कर रहा हूं तो वो लेटर अगर 0 है तो मुझे रीड करके कहां पहुंचना चाहिए? इस पर्टिकुलर स्टेट पे पहुंचना चाहिए। ओके, सो दैट्स वाई ऑन 0 I will be moving here. Similarly, from this on 0, I will be moving here. So here I am joining the arrows, क्योंकि वरना बहुत सारे बनाने पड़ेंगे, तो मैं आपको जस्ट आसानी के लिए दिखा रहा हूँ। बट जब भी आप एग्जाम में प्रॉब्लम बनाए तो ये सारे के सारे जो ट्रांजिशंस हैं ये अलग अलग इस स्टेट पे पहुंचते हुए दिखाने चाहिए आपको। इज इट? सो आई एम ज्वाइनिंग here. Okay, similarly on 0 it is going to the same state. Okay, on 0 it is going here. Similarly this also on 0 going here. Similarly this on 0 also going here. Is it? And this also on 0 going here. Is it clear? Similarly on 1,
अगर मुझे अगले ब्लॉक में 1 मिले तो मैं किसी भी ब्लॉक में, ये स्टार्ट स्टेट है, 1 मिलने पे कहाँ आऊंगा, इस पर्टिकुलर स्टेट पर आऊंगा, इज इट? सो यानी कि इन सारी ही स्टेट से अगर मेरे को 1 मिलता है तो मुझे कहाँ जाना है, मुझे इस पर्टिकुलर स्टेट पर जाना है। तो मैं इस पर्टिकुलर स्टेट का ट्रांजिशन बना लेता हूं ऑन 1, इज इट? इसी तरह से यहां ज्वाइन करता हूं इसको ऑन 1, इसी तरह से यहां ज्वाइन करता हूं इसको ऑन 1, इसी तरह से यहां ज्वाइन करता हूं इसको ऑन 1। अब देखिए मेरे सारे के सारे कंप्लीट हैं। देखिए एक ब्लॉक का मैंने पहले डिजाइन किया, उसके बाद अगले ब्लॉक्स के लिए सेम कॉन्सेप्ट को मैंने रिपीट कर दिया, इज इट? सो दिस वाज ए ट्रिकी प्रॉब्लम, ये आसानी से सॉल्व होने वाली प्रॉब्लम नहीं थी, बट ये 1-2 बार एग्जाम में आई है। तो अगर एग्जाम में इस तरह की वो ट्रिकी प्रॉब्लम आ जाती है तो दैट you will be able to solve only when you have solved it in previous. अगर पहले आपने सॉल्व नहीं कर रखी है तो इसको एग्जाम में करना इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। ओके, सो आई होप this answer, this solution, this methodology is clear to you how we have solved it. सर ये 0 और 1 वाली बात समझ में नहीं आई सर, जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड रो से हो रहा है ये फाइनल स्टेट वाला। मतलब कौन सा 0 वाला नहीं समझ में आया? फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट से कौन सी स्टेट की बात कर रहे हैं? जस्ट 1 मिनट, दिस इज अवर स्टार्ट स्टेट, इज इट? अगर सर फर्स्ट सेकंड थर्ड रो में जो फाइनल स्टेट है ना सर, वहां से ये जो 0 जा रहे हैं सर, ये वाला। ओके, देखिए यहाँ पर एक बार दोबारा देखते हैं, मैं कलर चेंज करता हूँ पहले पेन का, जिससे डिस्कशन में आसानी रहे। ओके, लेट मी टेक ग्रीन कलर। ओके, सो सपोज यू हैव रीच टू दिस फाइनल स्टेट, ठीक है? इस स्टेट पे पहुंचने का मतलब क्या है कि आपका पहला ब्लॉक 5 लेटर्स का कंप्लीट हो गया, इज इट? सिमिलरली अगर आप इस पर्टिकुलर स्टेट पर हैं, या इस पर्टिकुलर स्टेट पर हैं, या इस पर्टिकुलर स्टेट पे हैं, या इस पर्टिकुलर स्टेट पे हैं, तो आपका 5 लेटर्स का ब्लॉक कंप्लीट हो गया। ये बात समझ में आती है? यस सर। ठीक है, अब मुझे अगला ब्लॉक चेक करना है, ठीक है? अब अगला ब्लॉक मुझे कहां से चेक करता? मैं नॉर्मली इस जगह से स्टार्ट करता मैं ब्लॉक, ठीक है? ये पहला लेटर 0 रीड करके मैं यहां पहुंचता, दूसरा रीड करके यहां, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है? अब लेकिन जो पहला लेटर रीड कर रहा हूं, चूंकि अब मैं जो है 5 का एक ब्लॉक कंप्लीट करने के बाद जो छठा लेटर है वो तो इस स्टेट में रीड करूंगा ना, ठीक है? तो छठा लेटर इस स्टेट में रीड करूंगा तो उससे मुझे कहां पहुंचना चाहिए? मुझे उससे इस जगह पे पहुंचना चाहिए, इस जगह पर। क्यों? क्योंकि 7वां यहां लाएगा आपको, 8वां यहां लाएगा, 9वां यहां लाएगा, 10वां यहां लाएगा फिर, ठीक है? इसी तरह से फिर वापस 11वां आपको कहां ले जाएगा? इस जगह ले जाएगा, इज इट? सिमिलर इज द सिचुएशन विद द अदर रूल्स। सपोज मैं इस स्टेट पे हूं, तो यानी मेरा 5 का ब्लॉक कंप्लीट हो गया, तो छठा लेटर ये जो है 0, ये मुझे कहां ले जा रहा है? इस जगह पे ले जा रहा है, ठीक है? उसका 7वां कहीं भी, मतलब इधर उधर कहीं भी मूव कराए, ठीक है? बट इस नेक्स्ट लेवल की किसी स्टेट पे लाए, या तो यहाँ लाएगा या यहाँ लाएगा, ठीक है? उसके बाद 8वां सपोज मेरे को यहाँ लाता है, 9वां यहाँ लाता है सपोज, 10वां इस जगह पे लाता है, तो 11वां फिर कहाँ? अगर 0 है तो वापस किधर लेके जाएगा? इधर, वापस इधर लेके जाएगा, इज इट? तो इस तरह से ये मेरा लूप राउंड कंप्लीट हो रहा है। इज इट ओके और नॉट? यही पूछ रहे थे या कुछ और पूछ रहे थे? यस सर, यही पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो अभी समझ में आ गया कि 5वें के बाद मैं बजाय स्टार्टिंग स्टेट पे जाने के, क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपके दिमाग में ये था कि बजाय स्टार्टिंग स्टेट पे जाने के आपके दिमाग में ये होगा कि इन स्टेट से हमें मूव करके इस स्टार्ट स्टेट पे आना चाहिए था, इज इट? लेकिन हम इस स्टार्ट स्टेट पे ना जाके या तो इस पर्टिकुलर स्टेट पे आ रहे हैं या फिर इस पर्टिकुलर स्टेट पर आ रहे हैं। तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी हम एक लेटर रीड करने के बाद इनमें से किसी पाथ को ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, तो यानी कि एक लेटर जो हमने स्टार्टिंग स्टेट से रीड करा था वो तो हम यहाँ इधर फाइनल स्टेट से, इधर से, यहाँ से इस फाइनल स्टेट से, इस फाइनल स्टेट से, इस फाइनल स्टेट से, या इस फाइनल स्टेट से रीड कर चुके हैं। तो इसीलिए हम स्टार्ट स्टेट पर ना आगे या तो इस स्टेट पे पहुंच रहे हैं या फिर इस स्टेट पर पहुंच रहे हैं। इज इट क्लियर? उसके बाद आगे की फंक्शनिंग रिपीट हो रही है, ठीक है? थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, बट अगर आप एक बार ध्यान से इसको एक बार अपने हाथ से भी बना के देखने की कोशिश करें
तो ये आपको अच्छा समझ में आएगा। अब ये आप देखिए, आप कोई सा भी एक इस पे अगर जो एक स्ट्रिंग ले लीजिए, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1, सपोज दिस इज ए स्ट्रिंग। ओके, तो ये इस पर सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा आपको चेक करना। तो आप देखिए 5-5 के ब्लॉक बना लीजिए, 3 और 2 5, 3 और 2 5, और ये मेरा किसका है, ये मेरा 4 का ब्लॉक है। अब देखिए स्ट्रिंग की लेंथ 15 नहीं है, 14 है। लास्ट वाला ब्लॉक देखिए 4 का है, ये ब्लॉक 5 का है, ये ब्लॉक 5 का है। तो हर 5 कंसेक्यूटिव लेटर्स का जो ब्लॉक है उसमें कम से कम 2 जीरो होने चाहिए, तो आपका स्ट्रिंग सक्सेसफुल होगा। अब लास्ट वाला स्ट्रिंग, अब इसमें देखिए कहीं भी ये नहीं कहा है प्रॉब्लम की लेंथ आपकी 15 होनी जरूरी है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ 14 लेंथ है, तो यहाँ भी, लेकिन चूंकि ये तीसरा ब्लॉक भी चाहे लेंथ कम होते हुए भी चूंकि फॉलो कर रहा है इसको कि 2 जीरोज हैं, तो दिस विल बी ए सक्सेसफुल स्ट्रिंग। अब आप इसको इस पर रन करा के देखिए, देखिए पहला 1 आपको यहाँ ले जाएगा, उसके बाद अगला 0 आपको यहाँ ले जाएगा, उसके बाद अगला 1 आपको यहाँ ले जाएगा, ठीक है, अगला 1, उसके बाद फिर 0 आपको इस जगह पर ले जाएगा, और उसके बाद अगला 1 आपको यहाँ लेकर के आएगा। तो यानी कि ये आप देखिए एक फाइनल स्टेट, यानी कि आपका पहला ब्लॉक, अगर आपका स्ट्रिंग यहीं पे एंड हो गया होता, अगर आपका स्ट्रिंग यहीं पे एंड हो गया होता, तो ये एक सक्सेसफुल स्ट्रिंग होता। इज इट और नॉट? क्लियर है? उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, 0 0 1 0 1, ठीक है। अब मुझे मिला 0 0 मिला, तो मैंने किसको फॉलो किया, इसको फॉलो किया, इसको फॉलो करके मैं कहाँ पहुंचा, इस जगह पर पहुंचा। यानी कि अब मैं कहाँ पहुंच गया, इस जगह पर पहुंच गया, यहाँ, ठीक है, इस जगह पहुंचा। अब उसके बाद 0 1 0 1 0 1, ओके, उसके बाद 0, तो मैंने इसको फॉलो किया, 1 इसको फॉलो किया, फिर 0 इसको फॉलो किया, फिर 1 इसको फॉलो किया। अब मैं इस वाली फाइनल स्टेट पर पहुंचा, देखिए, ठीक है। इज इट? अगर मेरा स्ट्रिंग यहाँ भी फिनिश हो गया होता तो भी मेरा स्ट्रिंग सक्सेसफुल होता। अब वापस मुझे क्या मिला, 1 मिला, 1 मिला, तो यानी कि इस स्टेट से 1, तो इस स्टेट से 1 मैं इसको फॉलो करूंगा और कहाँ पहुंचूंगा, इस पर्टिकुलर स्टेट पर पहुंचूंगा। इज इट? इस पर्टिकुलर स्टेट पर पहुंच गया 1 फॉलो करके। अब मेरे पास क्या बचा है, 0 0 1, देखिए 0 0 और 1, मैं कहाँ पहुंचा, अल्टीमेटली इस वाली स्टेट पर पहुंच गया। इज इट? अब ये स्टेट क्या है, मेरी फाइनल स्टेट है। देखिए मेरा 5 का ब्लॉक कंप्लीट नहीं हो, 5 का ब्लॉक कंप्लीट होता तो इस डायगोनल में कहीं पहुंचता। अब देखिए मैं इस डायगोनल पर नहीं पहुंचा, बट इवन देन माय स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड, क्योंकि ये मेरी क्या है, फाइनल स्टेट है। फाइनल स्टेट क्यों है, और आप देखिए चूंकि ये ब्लॉक भले ही 4 का है बस, बट इसमें क्या आ गए, 2 जीरो आ गए, 2 जीरो आ गए, इसलिए क्या है, सक्सेसफुल। सपोज ये 1 0 0 1 ना होकर के सिंगल 0 0 भी होता है, यानी कि बजाय 4 के 2 का ही ब्लॉक होता है, बट दोनों जीरोज हैं, बट दोनों जीरोज हैं, तो भी ये एक्सेप्ट होता है। आप देखिए अल्टीमेटली इस 1 पे पहुंचा था, पहला 0 और दूसरा 0 मुझे कहाँ लेकर के आता, इस जगह लेकर के आता। इज इट? और यहाँ मेरा स्ट्रिंग क्या हो जाता, सक्सेसफुल हो जाता। इज इट? तो इस तरह से आपका ये प्रॉब्लम जो है सही वर्क करती है। अब आप जो है कुछ एग्जाम्पल स्ट्रिंग्स लेकर के इसको चेक कर लीजिए, तो यू विल अंडरस्टैंड दैट दिस एफ इज करेक्ट। ओके, कैन वी मूव फर्दर? Class, any other problem? 19, 20, 21, 22. Class, is there any problem in 19, 20, 21, 22? सर Yes. सर इसमें अगर हम जो 4 वाली स्ट्रिंग है उसमें लगातार 4 1 आ जाए तो ये एक्सेप्ट होगा? 4 वाली स्ट्रिंग मतलब अगर लगातार 4 1 आ जाए, ओके, यस। लास्ट में एक बार चेक कर लेते हैं, देखिए जस्ट 1 मिनट, ये कहाँ चला जाता है, जस्ट 1 मिनट। इसकी जगह ये लास्ट वाले में 4 1 होते सपोज, तो ये एक्सेप्ट नहीं होता। क्यों एक्सेप्ट नहीं होता? क्योंकि इसमें जो है कोई भी जीरो नहीं, मतलब कम से कम 2 जीरो चाहिए थे मुझे, ठीक है। अब आप देखिए कैसे होता है, पहले 2 ब्लॉक के एंड पे मैं यहाँ पहुंचा था, ठीक है। अब मेरे पास 4 1 आ रहे हैं, ठीक है, 4 1 आया, तो पहला 1 लेकर के तो मैं यहाँ पहुंच गया था, ठीक है। दूसरा 1 लेके यहाँ पहुंचूंगा, तीसरा 1 लेके यहाँ पहुंचूंगा, और चौथा 1 लेके यहाँ पहुंचूंगा। आई विल एंड इन दिस स्टेट, आई विल एंड इन दिस पर्टिकुलर state, and this is a non-final state, so my string will get rejected. Okay,
अब और देखिए यहाँ मैं चूंकि यहाँ एंड कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं मेरा लास्ट ब्लॉक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। लास्ट ब्लॉक में मैं केवल 4 लेंथ तक पहुंचा, 5 लेंथ तक तब पहुंचता जब मैं इस जगह पर पहुंचता या इस जगह पर पहुंचता। तो जब भी डायगोनल पे कहीं होऊंगा तो मेरा 5 का ब्लॉक कंप्लीट होगा। अदरवाइज अगर 5 का ब्लॉक कंप्लीट नहीं होगा तो मैं 4 का ब्लॉक कंप्लीट होगा तो इस डायगोनल पे कहीं होगा, 3 का ब्लॉक कंप्लीट होगा तो इस वाले डायगोनल पे कहीं होगा, 2 का ब्लॉक कंप्लीट होगा तो इस वाले डायगोनल पे कहीं होगा, और 1 का ब्लॉक कंप्लीट होगा तो इस वाले डायगोनल पे कहीं होगा। इज इट? और 5 का ब्लॉक कंप्लीट होगा तो इस वाले डायगोनल पर कहीं होगा। इज इट? तो इस तरह से आप देख लीजिए। अब उसमें अगर मेरे 2 जीरोज आ चुके हैं तो मैं किसी ना किसी फाइनल स्टेट पे पहुंचूंगा, चाहे इस वाले डायगोनल पे इन 4 में से कहीं पहुंचूं, इन 3 में से कहीं पहुंचूं, इन 2 में से कहीं पहुंचूं, या इस वाले पर पहुंचूं। और अगर मेरे उसमें 2 जीरोज नहीं आए हैं तो मैं इनमें से किसी भी स्टेट पर जो है होऊंगा जो कि मेरी नॉन फाइनल स्टेट्स है, एंड स्ट्रिंग विल गेट रिजेक्टेड। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम 19, 20, 21, आगे कोई प्रॉब्लम? 19 का सर 5th पार्ट। 19th का 5th पार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 19th and 5th part is 1 A B C D E. Okay, 19th E. 19th E क्या है? It says all the words that have different first and last letter. अरे ये तो आपने क्लास नहीं अटेंड की, ये तो जो हमने डिस्कशन किया था तो उसमें ये प्रॉब्लम मैंने कराई है। यू जस्ट रेफर द क्लास लेक्चर्स जो कि हमने बनाए थे। देखिए डिफरेंट फर्स्ट एंड लास्ट लेटर्स, अल्फा जो आपका सिग्मा है, सिग्मा इज ए कॉमा बी। डिफरेंट फर्स्ट एंड लास्ट लेटर मीन्स कि अगर ए से स्टार्ट हुआ तो बी से एंड होना चाहिए, और अगर बी से स्टार्ट हुआ तो ए से एंड होना चाहिए। इज इट? ये रेगुलर एक्सप्रेशन समझ में आती है ना? ए से स्टार्ट हुआ तो बी से एंड हो, और बी से स्टार्ट हुआ तो ए से एंड हो। सिंपल 2 सक्सेस पाथ से बन जाएगा ये स्टार्ट स्टेट। अगर ए से स्टार्ट हुआ तो बी से फिनिश होना चाहिए, एंड दिस विल बी द फाइनल स्टेट। अगर बी से स्टार्ट हुआ तो ए से फिनिश होना चाहिए, एंड दिस विल बी द फाइनल स्टेट। ओके, अब बाकी कंडीशंस कंप्लीट करना है। देखिए अगर ए से स्टार्ट हुआ तो इसके बाद अगर बी मिला तो मैं सक्सेस स्टेट पर पहुंच गया, लेकिन बी नहीं मिला, ए मिला, तो क्या करूंगा? यहीं पर स्टे करूंगा, क्योंकि अगर मेरा ए मिलता रहा, यहीं पे स्टे किया मैंने और वहीं पे एंड हो गया, तो ए से एंड होगा तो अनसक्सेसफुल होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही बी मिलेगा मैं फाइनल स्टेट पर पहुंच गया। अगर यहाँ एंड हो गया तो सक्सेस। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ एंड नहीं हुआ, आगे कुछ मुझे ए या बी मिला, तो सपोज बी मिलता है तो यहीं पे स्टे करूंगा, क्योंकि अगर यहाँ एंड हो गया तो बी से एंड होगा जो कि मुझे सक्सेस देगा, क्योंकि मेरा ए से स्टार्टिंग हुई है। लेकिन अगर ए से अगर मेरा बजाय बी के ए आया तो कहाँ है? मैं मूव बैक करूंगा इस पर्टिकुलर स्टेट पर, ताकि अगर ए पे एंड हो तो इस जगह पे एंड होगा। ठीक है, और जैसे ही बी मिलेगा वापस फिर यहीं पे आ जाऊंगा। तो जब भी बी से एंड करेगा आई विल बी ऑन दिस पर्टिकुलर स्टेट एंड माई स्ट्रिंग विल बी सक्सेसफुल बिकॉज इट हैज स्टार्टेड विद ए। सिमिलर कॉन्सेप्ट, सिमिलर लॉजिक यू कैन पुट ऑन दिस सक्सेस पाथ एज वेल, कि बी से अगर स्टार्ट हुआ, अगर बी मिलता रहा तो आप यहीं पे स्टे करेंगे, क्योंकि बी से एंड नहीं करना है आपको। अगर ए मिला तो आप यहाँ मूव करके, अगर यहाँ एंड हो गया तो सक्सेस है। अगर आगे भी फर्दर ए मिलता रहा तो और उस पे एंड हुआ तो भी ए से एंड होगा तो सक्सेस है। लेकिन अगर बी आएगा तो आप यहाँ से अवे मूव कर जाएंगे प्रीवियस स्टेट पे, कि अगर यहाँ एंड हुआ तो बी से एंड होगा, ये सक्सेसफुल नहीं होना चाहिए। और यहाँ से ए लेकर के आप हमेशा इस पे वापस लौट सकते हैं, क्योंकि अगर बी मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी आगे सक्सेस की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। स्टिल अगर आपको ए मिल जाए तो आप सक्सेस पर लौट सकते हैं, तो इसलिए आप उस स्टेट पर जाएंगे जहां से ए लेकर के आप वापस सक्सेस पर लौट सकें। सो इन दिस मैनर यू कैन solve this problem. I hope it is clear. यस सर। Okay. इसके बाद कोई प्रॉब्लम? ई के बाद 19th ई के बाद F 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो? क्लास
आप लोगों ने ये प्रॉब्लम सॉल्व करके देखे हैं कि नहीं देखे हैं? अगर सर कौन अभी सा मुझे आवाज नहीं, एक बार दोबारा से बोलिए, आप लोग क्या कह रहे हैं? सर 25 तक करे हैं, 24-25 अच्छा, तक। 24-25 तक। तो 25 तक कोई प्रॉब्लम है? अगर इसके आगे के नहीं किए हैं तो हम यहाँ स्टॉप कर सकते हैं, आप इसके आगे के कर लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जिस भी प्रॉब्लम को यहाँ डिस्कस करूँ उससे पहले अगर आप एक बार अपने आप अटेम्प्ट कर चुके हैं, चाहे भले ही अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट हो, बट उससे आपको समझ में आसानी से आएगा, क्योंकि आपको ये समझ में आएगा मैंने क्या ऑप्शंस ट्राई किए थे और कहाँ ट्राई करने से रह गया। तो क्योंकि बेसिकली मेरे बताने से नहीं है, आपका सॉल्व करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं इस पर बहुत फास्ट नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा जो है अपने आप बताने की कोशिश नहीं करूँ कि मैं तो सॉल्यूशन सबका बता सकता हूँ आपको, बट अल्टीमेटली आपसे होना चाहिए सॉल्यूशन। तो अगर आपने नहीं अटेम्प्ट किए हैं तो स्टिल आप अटेम्प्ट कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम इसको देख लेंगे, ठीक है? और अगर जो है आप कोई अटेम्प्ट कर लिया और कोई प्रॉब्लम पूछना चाहते हैं तो मुझसे पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं एक क्वेश्चन लास्ट डिस्कस करके इसको फिनिश करूँगा। From my side, I am discussing question number 27. इससे पहले कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। Question number 27. Question number 27 says that L is a b to the power n and b to the power m such that n greater than equal to 2 and m greater than equal to 3. इससे पहले क्वेश्चन नंबर 26 भी है, क्वेश्चन नंबर 26 which says that L is a b to the power n, b to the power n, a to the power m such that the same one n greater than equal to 2 and m greater than equal to 3. दोनों सिमिलर सी प्रॉब्लम लगती है, बट दोनों के एफ बिल्कुल डिफरेंट बने। जैसे 26 है, ऑब्वियसली बात है, एक पैटर्न आपको दिया हुआ है, मैंने आपको बताया था जहां भी पैटर्न होगा वहां आप क्या फॉलो करेंगे, सक्सेस पाथ, इसी पैटर्न को फॉलो कर लेंगे। सक्सेस पाथ किस हिसाब से बनेगा, जो भी स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग है उसके हिसाब से बनेगा। स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग कैसे फाइंड करेंगे, देखिए n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो n की मिनिमम वैल्यू क्या है 2, m की मिनिमम वैल्यू क्या है 3, ओके। सो यानी कि कम n की वैल्यू 2, यानी कम से कम 2 b जरूर आएंगे, उसके बाद a के कम से कम 3 a जरूर आएंगे। तो यानी कि मेरा सक्सेस पाथ क्या हुआ, मेरा सक्सेस पाथ कुछ ऐसा बनेगा, A B B A A A, ये स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग होगा जिसके कॉरस्पॉन्डिंग सक्सेस पाथ बनाएंगे, ओके। तो आप एक सक्सेस पाथ बनाएंगे, स्टार्टिंग से A B B एंड देन A एंड A, और ये आपका होगा फाइनल सक्सेस। तो आपने सक्सेस पाथ बना लिया, अब आपको बाकी ट्रांजिशंस कंप्लीट करना है एज पर दी प्रॉब्लम। अब देखिए ए से स्टार्टिंग होनी चाहिए, तो ए से स्टार्टिंग होगी, अगर बी से स्टार्ट हुआ तो फेल, अगर बी से स्टार्ट हुआ तो फेल। फेल मीन्स इसके जो ट्रांजिशंस होंगे वो ए और बी पर सेल्फ लूप होगा, इज इट। अगर बी से स्टार्ट हुआ तो ये फेलियर होगा, अगर ए से स्टार्ट हुआ तो सक्सेस पाथ पे आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब पहला बी मिला, ठीक है, अगर ये पहला बी ना मिलकर के ए मिलता तो पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पे आपको शुरू में एक ए चाहिए बस, उसके बाद क्या चाहिए, उसके बाद दो दो के क्लम्सेस में बी चाहिए आपको, इज इट। तो यानी कि अगर यहाँ बी मिला तो सक्सेस पाथ पे आगे बढ़ेंगे, अगर ए मिला तो इट विल बी ए फेल्योर एंड इट विल बी ए परमानेंट फेल्योर, ओके। अब पहला बी मिला तो अगला बी भी चाहिए, क्योंकि बी हमेशा दो के पेयर में आएगा, तो यानी कि इस पहले बी के बाद अगर ए मिल गया तो भी फेल्योर एंड इट विल बी ए परमानेंट फेल्योर। अगर दूसरा बी मिला तो सक्सेस पाथ पे स्टिक क्या बने रहे, इज इट। अब दो बी आ चुके हैं, इसके बाद ये जो है n की वैल्यू इससे ज़्यादा भी हो सकती है,
यानी कि तीसरा बी भी आ सकता है, चौथा बी, 2 बी आने थे, अब 3 4, सॉरी मैं यहाँ गलत बोल गया हूँ, यहाँ बी दो के क्लम्सेस में नहीं आएंगे, कम से कम 2 बी आएंगे। ओके, सो 2 बी चाहिए, उसका तीसरा बी भी हो सकता है, 4 बी भी हो, 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं, इट विल नॉट कम इन क्लम्सेस ऑफ 2। ओके, तो तीसरा बी भी आ सकता है, तो यानी कि तीसरा बी अगर मेरा आया है तो भी मुझे यहीं पे रहना है, चौथा भी आया है तब भी यहीं रहना है, पांचवा, यानी एनी नंबर ऑफ बीज कैन कम। सो बी पे मेरा क्या होगा, सेल्फ लूप। मैं इसी जगह इसी पाथ पे स्टे करूंगा, पाथ पे आगे तो नहीं बढ़ूंगा लेकिन इसी पाथ पे स्टे करूंगा, क्योंकि पाथ पे आगे बढ़ने के लिए मुझे क्या चाहिए, एज चाहिए। ठीक है, सो बी पर कितने भी बीज आए मेरे, बी पर यहीं रहूंगा। ठीक है, जैसे ही ए आना शुरू हुआ, अब देखिए मैं, यानी कि मेरा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, अब मैं इस वाले पार्ट पर शुरू हो गया, तो कम से कम ए कितने आने हैं, कम से कम 3 आने हैं। तो पहला ए आ गया, ठीक है, अगला ए आया तो पाथ पे आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगला ए ना आकर के अगर अगला बी आ गया तो इट विल बी ए फेल्योर एंड इट विल बी ए परमानेंट फेल्योर। सिमिलरली सेकंड ए आया, उसका थर्ड ए आया तो सक्सेस, और अगर थर्ड ए नहीं आया, थर्ड बी आया तो भी हमारी क्या होगी, फेल्योर होगी। इज इट, थर्ड ए आ गया तो अब मैं सक्सेस पे पहुंच गया, इसके बाद आगे कितने भी ए आए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कम से कम 3 ए चाहिए। आप देखिए m की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो 3 तो आने ही थे, इससे ज्यादा कितने भी ए आए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ए पर मैं यही स्टे करूंगा। लेकिन अगर बी आ गया तो चूंकि इसके बाद देखिए आप बी अलाउड नहीं है, अगर बी आ गया तो इट विल बी ए फेल्योर। इज इट, सो बी के आने पर आई विल मूव टू दिस स्टेट। तो इस तरह से मेरा ये एफ ए, इसका एफ ए बन जाएगा। बट जब हम इसी तरह से इस 27वीं प्रॉब्लम पे आते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ ए बी टू दी पावर एन, बी टू दी पावर एन, दोनों सेम लेटर्स की पावर आ गई है। जहां पे इस तरह का आ गया तो एक तरह से इट इज इक्वलेंट टू ए बी टू दी पावर आई, और साथ में इनकी जो पावर्स के लिए मिनिमम वैल्यूज हैं उनको हम ऐड कर लेते हैं, एन एम, 2 and 3। ओके, सो 2 and 3, तो इट विल बी 5, सो आई विल से दैट आई ग्रेटर देन इक्वल टू 5। सो दिस विल बी द प्रॉब्लम एंड दिस विल बी ए सिंपलर प्रॉब्लम। तो आप देखिए, भले ही इस तरह का जो पैटर्न जो बन रहा था वो इस तरह से बनता, तो आपको इस तरह से बनाने की जरूरत नहीं। अगर आप प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर लें तो आप आसानी से बना सकते हैं। अब ए बी टू दी पावर आई और 5 या 5 से ज्यादा बीस चाहिए, तो सिंपल आपका क्या जो बन गया सक्सेस स्ट्रिंग, माइनस ए, उसके बाद पहला बी, दूसरा बी, तीसरा बी, चौथा बी, पांचवा बी, एंड देन इट इज द सक्सेस। ओके, तो आपको ए मिला, ठीक है, अगर बी मिलेगा उसके बाद तब सक्सेस पाथ पे आगे बढ़ेंगे। अगर पहली बात तो अगर बी से स्टार्टिंग हो गई, बी से स्टार्टिंग होगी, देन इट विल बी ए फेल्योर। फेल्योर मीन्स इसके ट्रांजिशंस क्या होंगे, ए बी। उसके बाद अब अगर सेकंड बी मिला तो ठीक है, लेकिन अगर सेकंड ए मिला तो भी फेल्योर। सेकंड बी मिला तो ठीक है, ठीक है, उसके बाद अगर ये ए मिला तो ये भी फेल्योर, ठीक है। अब उसके बाद अगला बी मिला तो ठीक है, ओके, अगला बी मिला तो ठीक है। अगर ए मिलेंगे, मतलब हमें सक्सेस के लिए आगे क्या चाहिए, हमेशा बी ही चाहिए। अगर इसमें कहीं से भी ए मिलेगा तो इट विल बी ए फेल्योर। इज इट, उसके बाद ये जो है यहाँ बी आ जाएगा, अगर ए मिला तो फेल्योर। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो आप देखिए, आपको बीच में जैसे यहाँ हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करना था कि यहाँ सेल्फ लूप आएगा और इसके बाद जो है आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पे हम इसी तरह से 2b के बाद यहाँ सेल्फ लूप नहीं बना सकते, हमें b के साथ आगे बढ़ना है, और ये तभी पॉसिबल है जब हम इस तरह से इसको सिंप्लीफाई कर लें। सो ओनली दिस पॉइंट आई वांटेड टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। सो फ्रॉम माय साइड आई हैव कवर्ड whatsoever I wish to cover for today. Now I am closing and I am requesting you to practice further questions, ताकि नेक्स्ट सेशन पे हम जो है बचे हुए सारे शीट को जो के क्वेश्चंस को या प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर पाए। ओके, थैंक यू ऑल। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, अदरवाइज आई एम क्लोजिंग। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू एवरीवन। आप लोग प्रॉब्लम्स को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, और अगले सेशन पर डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, कल का जो सेशन है, कल सैटरडे में वैसे तो 10 से 11 है, बट कल का सेशन में 10 से 11 नहीं ले पाऊंगा, तो कल का सेशन मैं इवनिंग में किसी टाइम पे लूँगा। तो आप लोग इस बीच, आपको भी समय थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाएगा कल शाम तक सॉल्व करने का, तो आप इस पूरी शीट को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए कल शाम तक। कल इवनिंग में मैं किसी टाइम पे जो है आपको क्लास रखूँगा। मोस्ट प्रॉब्ली आई विल टेक इट 5 to 6, okay, yeah, or either 4:30 to 5:30 or 5 to 6, okay, time I will be telling you. Okay, thank you all.
थैंक यू सर।